Good morning, and today we are going to start the second last topic of the chapter, which is what? Element. So we are going to start elements, and before starting this topic, I want to make you understand one point. How your books are designed, right? The sequence of the chapters, actually the sequence is really very important. That why did you study chapter 1, matter in our surroundings, first? Okay, why second chapter was not the first chapter? So the reason is, what in chapter 1 what we studied classification of matter. Okay, classification of matter on the basis of physical properties, right? And I think all of you remember how matter has been classified on the basis of physical properties. It is actually solids, liquids, and gases. Okay, so physical properties, you must have clear idea about physical properties, what is meant by physical property, right? So everything is over in chapter 1 regarding physical properties. Okay, so broadly matter is classified into 3 on the basis of physical properties, which is solid, liquid, and gas. Now chemical properties, chapter 2, if you will see, in chapter 2 what you have studied? You have studied chemical properties of how you are classifying matter on the basis of its chemical properties. Okay, so on the basis of chemical properties, matter is classified into 2. One is pure substances, okay, and the second one is mixtures. We studied mixtures. Okay, and in mixtures, if you remember what we studied, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Okay, and in homogeneous what we studied? We studied true solutions. Okay, what we studied? We studied true solutions. And in heterogeneous we studied colloids and suspensions. Colloids and suspensions we studied. Okay, that much in heterogeneous. And if the syllabus, you must be knowing that the syllabus has been reduced to 30%, and there is a very important topic, which is separation techniques, which was based on separation techniques, has been removed. ओके तो आप देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस का सिर्फ थोड़ा बहुत डेफिनेशन देके उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को नहीं कुछ भी बताया गया है. ओके, उसके बाद फॉरन ही मिक्सचर्स पे टॉपिक आ गया है ना. तो मिक्सचर से स्टार्ट किया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और अगर और फर्दर आप पढ़ते तो यू पुट स्टडी व्हाट सेपरेशन टेक्निक्स, जो कि आप अब 10th में उसका कोई इतना कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, बट 11th में इफ़ यू विल टेक साइंस तो आपको फिर से सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी होगी. तो सेपरेशन टेक्निक्स सब कंटिन्यूटी में रहे तो सबसे पहले मिक्सचर्स कवर किया गया. ओके, समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई, देन केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्लासिफिकेशन किया, एंड विच इज प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स. एंड प्योर सब्सटेंसेस में भी आप क्या देखेंगे? एलिमेंट्स एंड compounds. Okay, elements and compounds. So elements are further classified into, elements की भी स्टडी आप जब करेंगे तो क्या देखेंगे? metals, non metals. In fact, let me write metalloid here. Okay beta, metals, metalloids and non-metals.
ओके तो अब आप प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर मेटल्स आई थिंक 8th में आपने पढ़ाई है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इट इज़ अगेन द रेपिटेशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एक्सेप्शंस दिए हुए विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं आपको कुछ भी मेटल्स के बारे में बताऊंगी तो इफ़ आई से कि मेटल्स हैव लस्टर, दे आर सोनरस, दे आर डक्टाइल, मेलिएबल और रिवर्स नॉन मेटल्स के लिए ट्रू होता है तो उसमें कुछ नया नहीं होगा, इजंट इट. या फिर दे आर यूजुअली सॉलिड मेटल्स. नॉन मेटल्स की हम बात अभी करेंगे और मेटलॉइड्स की भी करेंगे. तो लेट्स कम टू एलिमेंट्स फर्स्ट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू talk about elements only, and in the next video I will deal with compounds. Come to elements, the main topic that we are going to study. Robert Boyle was the first scientist who used the term element, okay, in 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने क्या एलिमेंट टर्म यूज किया. ओके रॉबर्ट बॉयल भी आप 11th में ही देखेंगे. After Robert Boyle, Antoine Laurent Lavoisier, he gave a very useful definition of elements, right? Antoine Laurent Lavoisier. Okay, he gave a useful definition of element. And what was that? Basic form of matter. What was that definition? It was that basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Okay, so it is actually the definition that was given by Antoine Laurent Lavoisier, that it is so basic form of matter, the element that we are talking about, that it cannot be broken down into further simple substances by chemical reactions. Suppose you have say you have gold sheet. Okay, gold is an element, we know, and if you are trying to break gold sheet into small pieces. Suppose you made a very small piece of gold. Okay, suppose this is a gold sheet and you are trying to break it into further smaller pieces. Okay, the smallest piece that will be that could be possible, okay, to obtain. If you are going to see what it is made up of, is still it will be what it contains gold atoms. क्या होगा उसमें? अगर आप उसको देखेंगे तो वो किससे बना हुआ होगा? गोल्ड के ही एटम से बना हुआ होगा. AU is the aurum. AU is the symbol for gold. AU. Okay, everywhere AU. It means that gold is an element. Similarly, you can have any, if you are going to study sodium, iron, potassium, although sodium and potassium are very reactive elements, but iron ले रहे हैं आप, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपको क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आपको क्या दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उससे बना है, वो भी किसके हैं? वो गोल्ड के ही हैं, या आयरन के हैं, या एल्यूमिनियम जो भी आपने लिया है. Am I clear to you? नाउ आई थिंक ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको. चाहे वो बहुत बड़ा आपको कोई एलिमेंट आप देख पा रहे हो उसको, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो स्टिल इट विल बी मेड अप ऑफ इट्स ओन काइंड्स ऑफ एटम. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट की एक और सही डेफिनेशन थोड़ी और परफेक्ट दे सकते हैं. I have written this definition that a pure substance that contains only one kind of atoms is more correct way of expressing an element. Okay, the definition for element is this one. This is more correct because what happens of radioactivity. You must have heard this term, although you might not be knowing about it. After the discovery of radioactivity, what happens? It has been found that elements can be broken down into simpler substances. Elements can be broken down into simpler substances, and a number of elements have been synthesized from simpler substances also. So hence we can say that this definition is not very much correct in comparison to this one.
Okay, so what we learned is that element is what is a pure substance first of all, and it contains only one kind of atoms, right? रेडियोएक्टिविटी किसने डिस्कवर करी थी? हेनरी बैकेरल ने, ठीक है। ये इतना डिटेलिंग है नहीं आपके उसमें, बट हाँ मेटल्स नॉन मेटल्स ये सब पढ़ रहे हैं तो आई फील लाइक शेयरिंग विद यू। और मैरी क्यूरी तो आप जानती होंगे, मैरी क्यूरी का कितना नाम है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, शी क्वाइंड द टर्म रेडियो एक्टिविटी। सो लेट्स कम टू फ्यू एक्सेप्शंस। मैंने मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, ठीक है, ये सब मैंने आपको अभी इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही बिकॉज ये आपने पढ़ा हुआ है और आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या नो दैट देयर आर 118 elements that have been discovered which two elements are naturally occurring and remaining are man-made, naturally occurring. Okay, आपकी बुक में मोर देन 100 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इट मीन्स दैट अगर आप देखेंगे लेटेस्ट तो 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार. ओके, डिस्कवर्ड सो फार 118 elements, out of which 92 are naturally occurring and the remaining elements are what? They are man-made. Okay, so let's come to few elements like majority of the elements are solid. Okay, majority आपको दिखेगी क्या? Mostly elements क्या है? They are solid. Okay, लिक्विड वाले एलिमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. लिक्विड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दो तीन नेम्स होते हैं ना कुछ भी, या फिर एक्सेप्शन आप पढ़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि लिक्विड एलिमेंट, अगर मैं आपसे बोलूँगी कि लिक्विड में स्टेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे मर्करी एंड ब्रोमीन. ओके, मर्करी सिंबल Hg, वैसे भी ये रिक्वायर्ड नहीं है. Br, हाँ बेटा, a metal which is liquid at room temperature and bromine is what? Is a non metal. तो देखिए क्वेश्चन कैसे इससे फ्रेम किया जा सकता है. अब आप देख रहे हैं आपका सिलेबस भी बहुत शॉर्ट तो हो ही गया थोड़ा बहुत, तो आप अगर देखें तो आपसे वन वर्ड आंसर्स में पूछा जा सकता है. नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नेम अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो व्हाट योर आंसर विल बी? योर आंसर विल बी ब्रोमीन. Mercury is a metal which is liquid at room temperature. It is used in thermometers also. Okay. Which state is left is gaseous state. Okay. Gaseous state में कितने elements हैं ये याद रखना है, 11 elements. Okay. We know that there are 11 elements that are occurring in the gaseous form at room temperature. जैसे कि सबसे पहले हम start कर सकते हैं. Let me use another pen. Okay. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. अभी आपको सिंबल्स अगर आपने पढ़े होते तो बहुत ही इजी होता, बस सिंबल्स लिखते चले जाओ और आप समझ पाते कि मैम ने किस एलिमेंट की बात करनी है. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस फॉर्म में. अभी तक हमने 3 लिखे. फ्लोरीन, ओके, Fluorine, chlorine also used as a disinfectant in swimming pools और वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. क्लोरीन बहुत सारे यूजेस हैं. शूज़ बनते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, क्लोरीन, हीलियम. अब हम हीलियम वाले उस पर आ जाते हैं ग्रुप में. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन. लेट मी काउंट कितने हो गए? ज़ीनन एंड रेडॉन. ओके, देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, तो ये आपको याद रखना है. पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिक्विड मर्करी, ब्रोमीन, ठीक है. गैसेस में 11 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन एंड रेडॉन. तो ये आपको याद रखना है. बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर व्हाट? दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. एक नेक्स्ट और चीज़ बता देती हूँ आपको.
Elements which have, I am going to explain you metalloids. I have written in advance in order to save time, obviously. Elements which have intermediate properties of metals and non-metals are called metalloids or semi-metals. Okay, they are not extremely like metals. Okay, and they don't exhibit the properties of non-metals exclusively. Okay, so they come, you know, in they have the properties, somewhat properties similar to metals and few properties similar to नॉन मेटल्स. ओके, जैसे आप कनेक्टिंग लिंक देखते हैं ना, कोई जैसे एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे हल्के हल्के ग्रेजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की चेंज होती हैं, इजंट इट? तो ऐसे ही इसी मेटलॉइड का भी है. ठीक है, दे लुक लाइक मेटल्स बट आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स. ओके, अपीयरेंस कैसा दिखता है? मेटल्स की तरह. अगर आप पिक्चर्स मेटलॉइड्स की देखेंगे तो आपको कैसी दिखेंगी? जैसे मेटल देख रहे हैं. Good conductors of electricity. You like metals. You know that metals are good conductors of electricity. Okay, and they are insulators like non-metals. ठीक है, और ना non-metals की तरह insulators होते हैं. ठीक है, अब थोड़े से examples हम पढ़ लेते हैं. इन्हें basically हम क्या कहते हैं? They are usually semi-conductors. They are generally semi-conductors. ओके, तो ये तो हमने देख लिया. अब हम एग्जाम्पल्स थोड़े से पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं मेटलॉइड्स के. फर्स्ट वन इज बोरॉन, सिलिकॉन. हाँ बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम. ओके, ये हमारे क्या है? ये है मेटलॉइड्स. इसको अच्छे से याद रखना है. ये थिंग्स टू रिमेंबर में ये एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स के. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन एंड. ओके बेटा, हाँ, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आपने पढ़ाई होगा. सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स चिप्स में यूज होते हैं. बेटा एक सेकेंड. आर्सेनिक आपको पता है कितना वाटर में आजकल आर्सेनिक मिल रहा है. आर्सेनिक से पॉइजनिंग हो जाती है, इजंट इट? इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. टेल्यूरियम, पोलोनियम, आपको अगर आपने सुना हो तो पोलोनियम किसने डिस्कवर किया था? मैडम मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, जो रेडियो एक्टिविटी पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रिसर्च कर रहे थे. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे. तो उन्होंने देखा इसकी बहुत कम लाइफ होती है पोलोनियम की. ठीक है, बहुत अनस्टेबल होता है, दैट इज़ वाई वेरी लेस लाइफ. और ऑब्वियसली ये भी कैसा है? ये भी बहुत रेडियो एक्टिव है, तो नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? ऐसी आर्सेनिक मैंने आपको बता दिया पॉइजनस होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट मेटलॉइड्स. और देख लेते हैं एक दो. गैलियम. अब मेटलॉइड्स टॉपिक इज ओवर, है ना? अब हम देख रहे हैं गैलियम और एक दो एक्सेप्शन जो आपकी बुक में दिए हुए. गैलियम एंड सीजियम, दे आर they have very less melting point, and they become liquid at room temperature. Actually मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि बोर्ड पे. I think you understand. They become liquid at a temperature slightly above 303 Kelvin. अब ये आप मेकआउट कर सकते हैं ना, वाई टेम्परेचर कन्वर्जन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू. आपने जो भी टेम्परेचर कन्वर्जन सीखा, 303 Kelvin इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना होगा. लेकिन अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्जन आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड. बेटा 1 मिनट. 103 माइनस 273 कितना हो जाएगा? 30. सो 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो जैसे अगर आप गैलियम और सीजियम, जो कि एडवाइजेबल नहीं है कि हैंड पाम में लें, तो इट विल चेंज इनटू व्हाट? इट विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. ओके, lead and mercury are comparatively, silver and copper they are metals, and lead and mercury, they are comparatively poor conductors of heat. Okay, lead is the poorest. Okay, lead को क्या हम बोलेंगे? poorest
conductor of electricity, very bad conductor. Iodine is a non-metal but it is lustrous. हमने पढ़ा है metals are lustrous means they have shine, but iodine is a non-metal which is lustrous. जब आप लैब में देखेंगे तो अगर आपको सब्लिमेशन दिखाया जाएगा तो आप आयोडीन के बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स देखेंगे जो बहुत अच्छे से शाइन कर रहे होते हैं. वो जो होता है ना वो देखने वाली चीज होती है. अगर आप आयोडीन इज अ नॉन मेटल और उसके क्रिस्टल्स आप देखेंगे तो वेरी ब्यूटीफुल वायलेट कलर. ओके, एंड दे हैव. नाउ सब्लिमेशन टॉपिक में ये आपको दिखाया जाएगा. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. व्हाट वी स्टडीड दैट मेटल्स आर हार्ड. ओके, दे आर वेरी हार्ड. बट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर एक्चुअली अल्कली मेटल्स जो कि आप ऑब्वियसली 10th में पढ़ेंगे. दे कैन बी कट विद अ नाइफ. ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. बस आप ये समझ लीजिए कार्बन की फॉर्म है. और कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल. नॉन मेटल्स हमने नहीं पढ़ा ना कि नॉन मेटल्स कोई भी कंडक्टर हो, बट ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर इज and it actually conducts electricity. ये भी 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे कि white conducts electricity. ओके, और एक और है इसका ही एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज डायमंड. हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड. ऑब्वियसली ये भी किसकी फॉर्म है? कार्बन की. नॉन मेटल, isn't it? But it is the hardest substance known. So this is all about metals, non-metals and metalloids. So ये किस में आ रहा है बच्चों? एलिमेंट्स हमने पढ़े. ओके